Hello students, I am Dr. Priyanka, and in the last session we have discussed the additional important part of CBSE of first unit, that is reproduction unit. Now we're going to start with the genetics and evolution. We have 4 chapters in this unit and we have to cover additional part of this unit in brief. राइट सो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस एंड इन दिस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन द फर्स्ट supplement part, the additional part in which the NCERT is briefing is phenylketonuria. So phenylketonuria is a chromosomal inheritance disease. ठीक है, अभी उसमें क्या है, हम लोगों ने जब बात की थी जेनेटिक्स एंड वेरिएशन वाला, जब हम लोग ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने बहुत सारे क्रोमोसोमल डिफेक्ट के बारे में बात की थी. अभी उसमें से हम लोगों ने बहुत सारे डिफेक्ट्स के बारे में बात कर दी थी, बट नॉट इन ब्रीफ. तो इन दिस पार्ट द एनसीईआरटी इज गिविंग द ब्रीफ की थैलेसीमिया उन्होंने 2-3 लाइन्स में बताया था, एक वर्ड में बताया था. अभी आपको उसको थोड़ा सा मोर डीप में जाना है. तो लेट अस स्टार्ट chapter or unit second, that is genetics and evolution, जिसमें हम लोग principles of inheritance and variation को डिस्कस करेंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिनाइलकीटोनुरिया. ठीक है, अब अगर मैंने फिनाइलकीटोनुरिया को डिस्कस करना है तो इसमें मैं डिस्कस करूंगी द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज सफरिंग from error in metabolism and is inherited in autonomous recessive trait. राइट. दूसरे में the affected individual gets accumulated and converted, या सिंपल सा लिखो लैक्स एन एंजाइम. फिर बाद में ये लिखेंगे कि क्या फिनाइलएलानिन डेफिनेशन होता है. लैक्स एन एंजाइम्स दैट कन्वर्ट्स फिनाइलएलानिन टू टायरोसिन. इससे क्या होता है, जब एंजाइम ही नहीं है तो क्या होगा, फिनाइलएलानिन गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल pyruvic acid, which interferes in the metabolism mechanism में इंटरफेयर करता है. ठीक है, मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म विच इंटरफेयर्स इन द मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म. और क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ
phenyl pyruvic acid, right? फिनाइल पायरुविक एसिड के पेनक्रियाज पे बहुत ज्यादा अफेक्ट आता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल phenyl acid which is due to lack of enzyme, ठीक है, which is due to lack of enzyme and leads to derivatives accumulation in brain, causes mental retardation. Causes mental retardation. Next, it also leads to reduction in hair and skin pigmentation, that is depigmentation of hair and skin. These substances are excreted out through urine, as these are not absorbed by kidneys, right? Next we're going to start with thalassemia. It is an autosomal recessive blood disease transmitted from parents to offsprings when both the parents are unaffected carrier for the gene or heterozygous. The defect is caused due to either mutation or deletion, resulting in reduced rate of synthesis of one of the globin chains that make up hemoglobin. Absence or
reduced synthesis of one type of globin, either alpha or beta polypeptide in precipitates which damage the cell, causing cell lysis, leading to anemia. Based on two types of affected globin, chains accumulates in RBCs and affected globin, ये मत लिखो, globin chains accumulated, because NCERT is giving brief. I don't think इतना ब्रीफ में जाने की जरूरत है कि बेट में 2 ग्लोबिन चेन्स को मेजर करना है. ठीक है, सिंपल सा लिखो कि अफेक्टेड ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन. Thalassemia is classified into two types. दो टाइप से क्लासिफाइड है. एक अल्फा थैलेसेमिया, दूसरा बीटा थैलेसेमिया. दूसरा बीटा थैलेसेमिया. Alpha thalassemia is characterized by reduced synthesis of alpha polypeptide and is caused due to mutation, deletion in two closely linked genes. ठीक है, whereas is characterized by reduced synthesis of beta polypeptide and is caused due to mutation and deletion in gene HBB, उसमें जीन HBA1 and
HbA2. HBB on chromosome 11 of each parent. एक important point that thalassemia differs from sickle cell anemia in that the former is quantitative problem of synthesizing too few globin molecules, while the latter is qualitative या qualitative problem of synthesizing and in correctly functioning ग्लोबिन. ठीक है, तो थैलेसीमिया बेटे दो टाइप्स का होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा. अल्फा में बेसिकली अल्फा चेन बनानी बंद कर देता है, और अगर बीटा की बात करूं तो बीटा में बीटा चेन सिंथेसिस रुक जाती है, और वो होती है प्रेजेंस ड्यू टू HBB ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11 पे. और अगर दूसरे की बात करूं तो वो होती है ऑन द क्रोमोसोम नंबर और HbA1 एंड HbA2 दोनों के क्रोमोसोम नंबर 18 ऑफ ईच पेरेंट. राइट, so this is the thalassemia which is NCERT is giving a brief view in supplementary part. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में. बेटे एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. इसमें से क्वेश्चन आता है कभी भी अगर आप लोग अपनी जैसे बोर्ड्स हैं तो बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करनी हो तो जस्ट और हम सबसे जरूरी बात कभी भी कुछ भी स्टार्ट करना है तो जरूरी है समरी जरूर करके जाना. किन्हीं भी चैप्टर्स की पीछे से स्टार्ट करेंगे. पीछे से जब आप स्टार्ट करेंगे तब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स एक तो आपने समरी जरूर करके जानी है. दूसरी बात ये है अगर आपने जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाले चैप्टर्स की बात करनी है तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में आपने समरी तो जरूर करके जानी है. दूसरा आपने पीछे से स्टार्ट करना है पढ़ाई करना. पीछे से जैसे कि अब आपका मैंने ये करा तो आपने इसमें पीछे वाले हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डाउन, स्नेफलर और टर्नर सिंड्रोम्स, ये सारी चीजें पीछे से स्टार्ट हो रही हैं. ठीक है, तो आप सबसे पहले इनको याद कीजिए क्योंकि शुरू में जब भी एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो उसका एक मेन टारगेट होता है कि वो पीछे से जरूर पेपर सेट करता है, ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे से. सो जस्ट ट्राई कि जो भी आपका पेपर हो, जो भी आपका पेपर सेट हो, वो आपका जो भी आपका पढ़ाई का शेड्यूल हो या हो तो आप आगे के टॉपिक से पहले स्टार्ट में जो लास्ट के टॉपिक्स रह जाते हैं. जैसे हम लोगों का बायोटेक्नोलॉजी में डाउनवर्ड बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, बायो जनरेटर्स के, ठीक है, बायो रिएक्टर्स. ठीक है, तो उनको आप सबसे पहले 5-5 नंबर के जो वो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आप उनको सबसे पहले याद कर लीजिए. ऐसे पुनेट स्क्वायर आ जाता है इसमें. ठीक है, ऊपर एलील होमोजोगस आ जाता है. अब जैसे इन्होंने बोला है कि इन सर्टेन मैमल्स नॉर्मल इलेक्ट ईयर्स आर डोमिनेंट ओवर ड्रूपिंग ईयर. इन क्रॉस बिटवीन टू टाइप्स द 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन द जनरेशन 3 हैड इरेक्ट ईयर एंड 1 हैड ड्रूपिंग ईयर.
what were the genotypes of the parent? You may represent dominant gene as E. Right. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे. What I've read, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है. Mammals, normal, erect are dominant over drooping ears. In cross between two types, out of 4 offspring produced in F2 generation, 3 had erect ears and 1 had drooping ear. What are the genotypes of the parents? You may represent dominant gene as E. ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको बताना है it is a monohybrid cross which can be represented as follows. तो सबसे पहले पी जनरेशन जिसमें आपके आ रहे हैं, या नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं. erect ears, drooping ears. P generation, EE, erect ears, gametes, F1 generation. अगेन हम इनब्रीडिंग कर रहे हैं. gamete, इसका ई, इसका ई. इसका ई, इसका ई. ठीक है. ई ई ई ई ई ई ई ई.
F2 F2 generation. Phenotypic ratio erect ears, drooping ears. The genotypic या genotype of parent erect ears, drooping ears. ठीक है, सो ये आपका बन गया मोनोहाइब्रिड पुनेट स्क्वायर. ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्स में आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन ZZ एंड X टाइप XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म. तो उसने क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है कि बताओ ZZ एंड XY टाइप ऑफ sex determination mechanism. Sex determination mechanism. Right. So ZZ type mechanism, XY type mechanism. ZZ type of sex chromosome are found in male birds. XY type of sex chromosome are found in humans and Drosophila. Such males produce only one type of sperms hence are homogametic. इसमें such males produce two types of sperms, hence are heterogametic. ठीक है, इसमें हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, birds exhibit
ZW type of sex determination the females have ZW sex chromosome hence produce two products and two types of gametes, female heterofamily while male ZZ chromosome produce only one type of gamete. The sex of individual is determined by type of ovum which is fertilized to produce offspring. Right. So in this part we have discussed, we have write down the main both XY and ZZ type of mechanism. In this XY type of mechanism, we have discovered that it is found in mostly human. And if in case of ZZ type of mechanism, we have discovered that ZZ type of mechanism is mostly prominent in male birds, right? And in the same way में एक birds का अगर मैंने बोल दिया ZW type of mechanism exhibit करता है, तो ऑब्वियसली बात है कि एक आपका दो टाइप्स के एक आपके हेट्रोगेमेटिक फैमिली होगी, एक होमोगेमेटिक फैमिली होगी. अब हेट्रोगेमेटिक फैमिली में आपका हेट्रोगेमेटिक फैमिली में एक आपका टोटल आ जाएगा और एक आपका होमोगेमेटिक फैमिली में टोटल आ जाएगा. ठीक है, तो उसमें जो आपके ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो अलग होता है. जैसे फीमेल्स में अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन बींग्स में, तो फीमेल्स में एक्स हार्मोन्स जो सेम है होमोगेमेटिक फैमिली में से होती है. बट इन केस ऑफ बर्ड्स उनमें उल्टा होता है कि जो फीमेल्स होती है उनके पास दो टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. लेकिन अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो उनमें दो टाइप्स के होमो क्रोमोसोम नहीं होते, उनमें सेम टाइप का क्रोमोसोम होता है. ठीक है, सो आई डोंट थिंक कि देयर इज मोर टू डिस्कस इन द चैप्टर. प्लीज 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 ग्राफ्स जरूर करिएगा इस चैप्टर के, मतलब जितने भी पुनेट स्क्वायर है, जितने भी पॉसिबिलिटी लास्ट ईयर में आए हैं वो पॉसिबिलिटी से वो जरूर कीजिएगा. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज मॉलिक्यूलर वेरिएशन, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस. अभी अगर मैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस की बात करूं तो वही हमारा बेसिक डिफरेंस आ जाता है mRNA एंड tRNA का. सो दैट इज द नेक्स्ट, दैट मीन्स चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ DNA और मॉलिक्यूलर बेसिस, राइट. इसमें से आपका आ जाता है mRNA, tRNA. तो अगर mRNA की बात करती हूं तो इट इज स्ट्रेट
इन चेन मॉलिक्यूल, चेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में स्टेट मॉलिक्यूल होता है बच्चे ये। सेकेंड, इट इज लूप्ड स्ट्रक्चर, लूप देखा है ना सबने, लूप स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स क्लॉवर लीफ लाइक, क्लॉवर लीफ लाइक दिखता है। दूसरा, इट हैज अ सीरीज ऑफ कोडॉन्स, पहला, इट हैज अ सीरीज ऑफ कोडॉन्स ईच ऑफ विच कोड्स फॉर a particular amino acids. Sorry, it has an amino acids. It has an amino acids which acts as a binding site. बाइंडिंग साइट का मतलब जैसे एंजाइमल रिएक्शंस होते हैं बच्चे, कि एक आपने कोई मेडिकेशन लिया, फिर उसमें एक आपका बाइंडिंग साइट होती है, वहीं से आपका जुड़ेगा कोई मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद जाके कहीं दूसरे पे जाके जुड़ेगा। या एक होते हैं एलोस्टेरिक साइट्स, ठीक है, तो एलोस्टेरिक साइट्स और एक होते हैं मेन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स, जो बाइंडिंग सीट्स कहते हैं जैसे। तो एक होती है एलोस्टेरिक साइट जो मतलब उसके अलावा कहीं पे भी, ठीक है, तो ऐसे ही बाइंडिंग साइट्स एंड हैज एंटीकोडॉन्स, जो कि अपोजिट्स होते हैं mRNA के। मतलब अगर ये ग ग ग ग ग गा रहा है तो ये ट ट ट ट ट गा रहा है। समझ में आ रही है? ठीक है, एंटीकोडॉन्स a sequence of 3 bases complementary to कोडॉन, जैसे ये mRNA स्ट्रक्चर, ये tRNA स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें अगर ये G है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री T है, दैट मीन्स अगर ये कोडॉन है तो ये एंटी है, दैट मीन्स complementary structures which are different, right? So next, it dictates the sequence of amino acids in polypeptide chain, next it carries a specific site, it carries a specific amino acid to the site of protein synthesis. तो अगर ये एक पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस डिनोट कर रहा है तो ये पॉलीपेप्टाइड की
ये बता रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस की कौन सी साइट्स होंगी। ठीक है, अभी पॉलीपेप्टाइड इज अ ग्लूकोपॉलीपेप्टाइड चेन, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स आर बोथ आर फॉर्मिंग, राइट। तो अब अगर तुम्हें बताना है कि ऑड वन आउट, एक फार्म है उसमें आपने हॉर्सेस भी डाल दिए, डंकीज भी डाल दिए, now you will have to select which are the horses and which are the donkeys. So how you differentiate? You can mark donkeys with A and you can mark horses with B in the same sequences. इनमें ये बता रहा है जैसे mRNA है तो उसमें पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस है ऑटोमेटिकली, तो दूर से ही अगर आपको बी कलर का पॉलीपेप्टाइड चेन दिख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये तो mRNA है। और अगर आपके पास इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स का डिनोशन दे रखा है देन इट इज द tRNA। तो इन दोनों में ही आपको बता रखा है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन mRNA, दैट मीन्स मैसेंजर RNA एंड ट्रांसक्रिप्ट RNA। बेसिकली वन इज पियोन एंड वन इज द ट्रांसलेटर, राइट। वन इज मैसेंजरिंग, दे रहा है एक इन्फॉर्मेशन डिकोड करके दूसरे को, जैसे मेरे को किसी ने 2 वर्ड्स बोले ए बी और मैंने वही वर्ड्स जाके ए बी बोला, मैंने उस पर दिमाग नहीं लगाया। अभी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या है, मेरे को किसी ने ए बी बोले, अब मैं उसको क्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ, यार ए बी का मतलब क्या हो सकता है, ऐसे वैसे। सो आई एम क्रैकिंग ऑल द डिटेल्स कि ए बी सीक्वेंस का मतलब क्या हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट सप्लीमेंट एडिशनल मटेरियल। नेक्स्ट जो आपको दे रहा है, एनसीईआरटी बता रही है, वो बता रही है आर सेल्स एंड एस सेल्स जो हम लोगों ने रैट के किए थे कि कौन सा चूहा मरा था, कौन सा चूहा, ग्रिफ्सेंस एक्सपेरिमेंट और फ्रिडग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने किया था, उसमें उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया कि फर्स्ट उन लोगों ने एक सोल्यूशन लिया, फिर उसका दूसरा सोल्यूशन लिया एंड फिर वी हैव डिस्कस की विच रैट विल सर्वाइव एंड विच रैट विल बी डाइड। सो उसमें हम लोगों ने एक फिगर के साथ उसको समझाया था। ठीक है, तो उस फिगर में उन्होंने बताया, ज्यादा तो खास नहीं, बट उन्होंने ये बताया था कि वन इज द पॉलीसैकेराइड चेन एंड द अदर इज द म्यूकोपॉलीसैकेराइड चेन। उसमें क्या डिफरेंस है कि अगर एक ग्रिफ्समैन एक्सपेरिमेंट्स में लाइव सेल्स आ रहे हैं दैट इज द जीन कॉम्बिनेशन, और दूसरे में आ रहे हैं सो वो जीन नहीं बन रहे हैं, वो रिएक्शन वो एक्ट नहीं हुआ, सो वो नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेरे को एक डायग्राम के थ्रू पूछा जाए एक कंसेप्ट, ठीक है, सो हाउ विल आई प्रोक्लेम लाइक replication sequence the NCERT is giving कि how you will decode the DNA segments into the 1500 micro units. Like let us discuss this question है, a DNA segment has total of 1500 nucleotides. This is a question. Nucleotides out of which 410 are granules. ठीक है, grellamines also, grellamines is better, right, containing nucleotides. अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, how many pyridine base segment it possesses। तो एक बताना है कि एक बेस सेगमेंट कितना पिरामिडीन का सीक्वेंस कर रहा है, दूसरा ये बताने को कह रहा है दूसरा इसने एक डायग्रामेटिक व्यू बता रखा है, तो वो डायग्रामेटिक व्यू विल डिस्कस। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि द टोटल नंबर कितने हैं, द टोटल नंबर ऑफ G प्लस C। तो अगर एक इतना है, आउट ऑफ विच 4 आर ग्रालिमीन्स, दैट मीन्स 410 प्लस 410। दूसरा ये बता रहा है द टोटल नंबर, ये था ग्रालामीन, अभी द टोटल नंबर कितना है, दैट मीन्स 1500 इसका हो गया। ठीक है, 1500 माइनस, क्योंकि ये तो माइनस ही हो गए हैं क्योंकि 2 ग्रालामीन्स के वो कह रहे हैं, क्योंकि ये तो पिराडीन के सीक्वेंस बनते ही नहीं है पहली चीज तो। सो 820
that is 680. So the total number of T, तो वो कैसे होते हैं, अगर मेरे को T सीक्वेंस देखना है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर अगर एक 100% तो होंगे नहीं, 50-50 होते हैं. अगर एक एंटी कोडॉन है तो दूसरा कोडॉन होगा. तो मैं इसको कर दूंगी T/2, दैट इज 680 अपॉन में 2, तो दैट इज 340. ठीक है. सो द टोटल नंबर ऑफ pyrimidine sequence bases will be 410, हाँ 410 प्लस 340, दैट मीन्स 750. ठीक है. दैट मीन्स अगर ये आपको बता रहा है कि कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोगों को कंसेप्ट लगाना है, टोटल कंसेप्ट लगेगा. अभी वो टोटल कंसेप्ट में क्या बोल रहा है कि एक डीएनए सेगमेंट हैज 1500 न्यूक्लियोटाइड्स, आउट ऑफ विच 410 आर ग्लाइनामीन्स कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स. सो दैट मीन्स ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये तो ग्लाइनामीन ग्रुप कंटेन कर रहा है, राइट. हाउ मेनी pyridine बेस सेगमेंट्स है, तो द टोटल नंबर ऑफ G+C जो कि 410 है हमारे ग्लाइनामीन के, वो तो टोटल नंबर, क्योंकि अगर एक 410 है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर भी 410 होगा, तो हम लोगों ने प्लस कर दिया. अभी टोटल नंबर निकालने हैं, क्योंकि देखो 1500 न्यूक्लियोटाइड है, उसमें से तुम लोगों को पिरामिडीन और पायरोसिन वाले निकालने हैं. तो 15 में से 820 माइनस कर दो, क्योंकि यही तो तुम्हारे G+C आ रहे हैं, तो 680. अगर तुम लोगों को टी बेस निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर, वो तुम्हारा हाफ होता है. ठीक है. क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर कैसे आता होगा, अगर एक कोडॉन है दूसरा एंटी कोडॉन है, सो दैट मीन्स भी 100% तो नहीं होगा ना, तो दैट मीन्स भी बाय 2, हाफ रेशियो में. ठीक है. सो दैट मीन्स भी T/2, दैट मीन्स 680/2, दैट मीन्स 340 आर द टोटल नंबर ऑफ T. तो अब टोटल नंबर ऑफ pyridine, अगर एक तुम्हारे 610 है, एक तुम्हारे 340 निकल रहे हैं जो कि T सीक्वेंस में आ रहे हैं, सो दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इज योर the combination is if T or pyridine basis, right? So this is the important question. ऐसे ही वो क्वेश्चन तुम लोगों को दे देगा कि एडेनिन का दे रखा है और 200 न्यूक्लियोटाइड्स दे रखे हैं, अब तुम्हें ग्वानिन का बताना है और 520 न्यूक्लियोटाइड्स का बताना है. So ऐसे ही करके तुम लोग आंसर निकालोगे कि साइटोसिन्स विल बी -2 and +200, right? So from this chapter the supplementary material will be honored. Now let's comes to the next chapter, the last chapter, that is evolution. So evolution में origin of evolution में हम लोगों ने रामापेथिकल्स एंड डायपेथिकल्स की बात की थी. ठीक है. अभी उनमें उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने बेसिकली होमोलोगस और टर्शरी कोनिकल एरा की बात की है. बेसिकली दिस कोनिकल एरा ऑफ टाइम ऑफ यू कैन से, जो हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली एग्जाम्पल्स दे रहा है मोस्ट की नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का क्या बेसिस है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं हम. बाकी एग्जाम्पल्स एज सच इतना वो नहीं है. नेचुरल सिलेक्शन और एक मैं ले रही हूं आर्टिफिशियल सिलेक्शन. ठीक है. इट इज द प्रोसेस occurring naturally over a number of progressive successions or generations to increase the proportions to fit the individual in a specific or well defined
population. So well defined मतलब nature is selecting the organism by its own. एक है हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं. आर्टिफिशियल सिलेक्शन में अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन करानी है, ठीक है, मेल्स या मतलब मैंने एक फीमेल का, मेरे को काओ का, जैसे हम लोग जैसे फूड स्ट्रैटेजीज में किया था चैप्टर में, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि मैं एक सुपीरियर क्वालिटी की काओ लूंगी और ऐसे ही मैं एक इंफीरियर क्वालिटी की काउ तो लूंगी नहीं, मैं सुपीरियर क्वालिटी की काउ, मतलब बोथ द पेरेंट्स आर ऑफ द सुपीरियर ब्रीड, राइट. तो अगर मैंने दोनों सुपीरियर की तो मेरा जो जीन करेक्टर आएगा वो भी सुपीरियर क्वालिटी का आएगा. सो इन द सेम मैनर नेचुरल सिलेक्शन इज एवोल्यूशनरी, कि धीरे 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 जो भी स्पीशीज सरवाइव कर पाए वो. अब ऐसा नहीं है कि अगर आर्टिफिशियल नेचर ने सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करना होता जो सरवाइव, कुछ ऐसे भी हैं जो कि मतलब मैंने बिल्कुल पैरामीटर नहीं कर दिया. अभी मेरे पास 100 गायें हैं, अभी उन 100 गायों में मेरी 2 गायें ऐसी हैं जो कि मुझे 20 किलो एक टाइम का दूध देती हैं, बाकी गायें 20 किलो नहीं दे रही है, कोई 18 दे रही है, कोई 19 दे रहा है, तो क्या उनको मर जाना चाहिए? नहीं. नेचर इज नॉट डूइंग लाइक दैट, वी आर डूइंग लाइक दैट. अगर मेरे को आर्टिफिशियल सिलेक्शन करना है या हाइब्रिडाइजेशन करना है तो मैं 18 और 19 वाली को निग्लेक्ट करूंगी और मैं 20 वाली सुपीरियर कैरेक्टर पे जाऊंगी. इन द सेम वे में नेचर ऐसा नहीं कर रही है. नेचर एक एवरेज रैंडम नेचर लगा के सिलेक्शन के में कर रही है. फॉर एग्जाम्पल जो 20 किलो दूध दे रही है, 18 दे रही है, 19 दे रही है, 17 दे रही है, 16 दे रही है, 15 दे रही है, 14 दे रही है, दैट मीन्स 9 के जो नीचे है वो नहीं जाएंगे आगे, बाकी 9 के ऊपर है. जैसे होता है ना स्कूल्स में पास और फेल कह देते हैं कि 33% आ गए तो सब पास, ठीक है. अभी उसमें ये थोड़ी है कि अगर आपके 33 बॉर्डर पे आए हो तो आपने टॉप किया है, नहीं. That means कि that you are the last, but you are also eligible to compete in the given race. So in the same manner, अगर natural selection की बात कर रही हूँ तो natural selection the nature is giving the whole average, ठीक है. और अगर मुझे artificial selection करनी है तो मैं सिर्फ, अगर मुझे चुनना है कि भाई मेडिकल कॉलेज अगर एम्स है और मेरे पास 2 सीट्स हैं तो मैं 18-19 वाले को नहीं दूंगी, मैं 20-20 वाले को दूंगी, बिकॉज ऑफ द मोर सुपीरियर कैरेक्टर, राइट. सो इन द सेम वे में अगर मैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन लिखूंगी तो मैं लिखूंगी इट इज द प्रोसेस occurring manually choosing superior, you can say utmost superior character breed to get the desired results of species, ठीक है. The parents selected are most in the are most up close, मतलब बहुत ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर के होने चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग एनसीईआरटी इसका एडिशनल पार्ट बता रही है, वो क्रिएचर्स वगैरह के बारे में बता रही है, और एक आपकी पेंसर्मिया थ्योरी बता रही है, थ्योरी ऑफ पेंसर्मिया, कि इसमें बेटे ग्रीक थिंकर्स थे. तो ग्रीक थिंकर्स शुरू के में एक आइलैंड्स पे, शुरू में क्या था कि नॉलेज नहीं थी लोगों को इतनी कि एवोल्यूशन भी कोई टर्म हो सकती है. पहले तो लोगों को यही नॉलेज नहीं थी कि जिन जगह वो रह रहे हैं उनके आगे भी कोई दुनिया है या नहीं. दैट मीन्स कि दे इवन डोंट नो कि अगर मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो गुजरात, ये जो हम लोगों ने बनाए हैं स्टेट, या साउथ नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया कुछ लाई करता है, या यूएस अमेरिका, ऐसा कुछ नहीं. दे डोंट हैव एनी सच नॉलेज. सो धीरे धीरे थिंकर्स, दैट टाइम फिलोसोफर्स आर देयर टू थिंक, to imagine a theory, to manipulate a theory and present it to the world. So उन्होंने थिंक स्टार्ट करना शुरू किया कि पानी में ऐसे जीव है, यहाँ पे ऐसे जीव है. तो उन्होंने एक शुरू में, जैसे हम लोग एक बिग बैंग थ्योरी बताते हैं कि यार बिग बैंग थ्योरी ऐसे थी कि एक डस्ट का क्लाउड बना और उस डस्ट के क्लाउड ने बहुत रेवोल्यूशनरी स्पीड से अपने रोटेशन करना स्टार्ट किया. जब उसने बहुत रोटेशन स्टार्ट कर दिया तब वो थोड़े 1.5 मिलियन 1.8 मिलियन के बाद रुका और उसने काफी सारे आग के गोले फेंके. दैट मीन्स ही बम्बार्डेड द डस्ट पार्टिकल्स ऑफ क्लाउड्स एंड वी नेम देम प्लैनेट्स, राइट. उसमें अर्थ बन गया, वीनस बन गया. द होल यूनिवर्स इज मेड अप लाइक दिस. द बेसिक थ्योरी द वी हैव प्रोक्लेम्ड.
नाउ इन दैट टाइप ऑफ थिंकर्स, उस टाइम पे थिंकर्स ने, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब तब तो ये थ्योरी आई नहीं थी, उन्होंने बोला कि नहीं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, एवरीथिंग हैज स्टार्टेड विद अ स्पोर। एक स्पोर था जिसको उन्होंने यूनिट ऑफ लाइफ कहा, उसी स्पोर से सब जनरेट हो गया। 11th क्लास में आपने स्पोर्स के बारे में पढ़ा होगा। स्पोर्स क्या होते हैं, जैसे राइजोडियम स्पोर हो गया या फंजाई स्पोर हो गया, कि स्पोर्स आर द रुके हुए फॉर्म्स, ठीक है, रुके हुए फॉर्म्स, यू कैन से द जर्म सेल्स, कि जहां जहां वो गिरेंगे वहां वहां लाइफ जनरेट हो जाएगी। तो ऐसे ही एक फोर था, माइक्रोस्पोरेंजियम लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर खूब सारे स्पोर्स भरे हुए थे। जहां जहां वो डिसेंस हुए, जहां जहां वो गिरते चले गए, वहां वहां पे एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गया। फिर आफ्टर सम टाइम वो उस दो, एक यूनिसेलुलर स्टेज थे वो ऑर्गेनिजम्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स ने विद द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन यूनिसेलुलर से यूकैरियोटिक की तरफ जाने लग गया, 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, और ऐसे ऐसे मैनी ऑर्गेनिजम्स, मतलब करोड़ों लाखों अरबों साल पहले की ये थ्योरी उन्होंने दी। और देखा जाए तो कुछ हद तक उनकी ये थ्योरी एप्लीकेबल भी हुई, जो कि अभी फिलहाल हम लोगों ने रिजेक्ट की थी। उन्होंने कहा था कि स्पोर फॉर्मेशन हुई थी, और उस स्पोर फॉर्मेशन में डिफरेंट पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन स्टार्ट होती गई। फिर जैसे 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, एनिमल किंगडम में पहले पोरिफेरा आया, फिर सीलेंट्रेटा आया, फिर नाइडेरियंस आए, फिर प्लेटीहेल्मिन्थ्स आए, फिर उसके बाद वर्टिब्रेट्स स्टार्ट हुआ, नॉन वर्टिब्रेट्स खत्म होके फिर लास्ट में मैमल्स आए। इन द सेम मैनर वो उन्होंने कहा स्पोर्स जहां जहां पे एवोल्यूट करते गए, वहां वहां पे एवोल्यूशन के प्रभाव से ऑर्गेनिजम्स आगे की तरफ प्रोक्लेम करते गए। सो दिस इज अ थ्योरी विच वॉज एक्सेप्टेड वाइडली over the natural selection, over the artificial and the natural selection. ठीक है, so that is the theory called panspermia, जिसमें उन्होंने panspermia का, that means पेंसिला एक आइलैंड था जहां पे उन्होंने स्पोर थ्योरी दी थी। ठीक है, ट्रांसफर डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, उन्होंने डिफरेंट प्लैनेट्स की थ्योरी दी थी। ठीक है, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि हर बार क्वेश्चन में पूछा, मतलब इस चैप्टर से उठ जाता है कि अगर आप एक एंटीबायोटिक ले रहे हैं और अगर आप अपने क्लासमेट से डिसएग्री कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये एंटीबायोटिक नहीं, तो आप उसको कैसे समझाओगे? माइक्रोब्स का एग्जांपल देते हुए तो आप उसको समझाओगे एवोल्यूशनरी थ्योरी की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे आपकी बॉडी में आके प्रोक्लेम करके आगे की तरफ डिवाइड कर जाते हैं, और जैसे जैसे उनका डिवीजन होता है वैसे वैसे ही वो फर्दर डिवाइड, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया तो प्लाज्मोडियम सबसे पहले आरबीसीज में नहीं रहता, वो लिवर में जाके डिवाइड करता है। जब वो लिवर में जाके अच्छी तरह डिवाइड करता है तब वो आरबीसीज में आता है, ताकि एनोफिलिस या कोई भी मस्कीटो ब्लड में आके उसके जो जर्म सेल्स हैं वो ले जाए। सो इन द सेम मैनर में आप उसको इस थ्योरी से समझाएंगे। दिस इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन विच मे कम इन 3 मार्क्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया, हु डिसअप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ? सो दैट इज लार्विस पेस्चर। दिस ही इज द साइंटिस्ट हु इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही हैज स्ट्रांगली डिसअप्रूव, जो उसने बोला कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरी थी उसने प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप करे, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स करे ऑर्गेनिजम्स के, तब जाके उसने अपनी थ्योरी proclaim की, right? So here we have completed the additional supplement part of the second unit, that is genetics and evolution. In the next session we're going to start with the unit 3's additional material. So till then just keep revising. All the best. Thank you.